Hello friends, welcome to Max Academy. Today we are going to study about occurrence of metals. So how do metals occur in nature? It occurs in earth crust and sea water. First in the minerals, elements and compound occurring generally in the earth crust. And next is ores. Metal are obtained from the ores, and in ore may contain the metal in the elementary state or in the form of its or its compounds. So ठीक है, तो getting metal out of the ore is called extraction of the metal. ore की मदद से हमें metal जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? Extraction of metal. Next. So इस टेबल के थ्रू हम पूरा प्रोसेस पहले देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है. So first is ore and then concentration of ore take place. This is subdivided into three parts: metals of high reactivity, metals of medium reactivity and metals of low reactivity. So first we talk about metals of high reactivity. In the metals of high reactivity, electrolysis of molten ore take place. Then we get the pure metal. ठीक है. In metals of medium reactivity, it is subdivided into two parts: carbonate ore and the sulfide ore. For the carbonate ore metals, we get the calcination process, and for the sulfide ore, roasting process is involved. From this process, the metal carbonates or the sulfide extract into its oxide. We get the metal oxide, and then after that metal oxide, it's reduced to give a metal, and then reduction of metal process, the purification of metal has done. We get the purified metal. Next, metals of low reactivity. In the metals of low reactivity, for the sulfide ore, we get the process roasting. From the roasting process, we get our pure metal, and then pure metals, they are sometimes some impurities also have taken place. So last, the process involved is refining of metals. Okay, next. So now we study details about the extracting metals from the low in the activity series, medium and top in the activity. So first the extracting metals low in the activity series. Okay, so low in the जो metals activity series में low होते हैं, तो metal placed at the low level of activity series are very unreactive. The oxide of this metal are reduced to metals by heating alone. For example, HDS cinnabar है, तो cinnabar is the ore of mercury. वो mercury का ore है. जब इसको heat में इसको reaction करवाते हैं तो it's first converted to mercury oxide. सबसे पहले जो है ये mercury oxide में convert होता है. देन उसके बाद मर्करी ऑक्साइड को वापस रिड्यूस करते हैं तो हमें हमारा मर्करी मिल जाता है. कैसे देखते हैं, इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं. ओके, 2HgS प्लस 3O2 गिव 2HgO प्लस 2SO2. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे पास सिनेबार था, ठीक है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो सबसे पहले हमें मेटल ऑक्साइड मिला है, मतलब हमारे मरकरी ऑक्साइड मिला है. अब इस मरकरी ऑक्साइड को अगर हम फर्दर हीट करेंगे ना, HgO हमें मिला, इसको फर्दर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा जो कि मरकरी. ओके, तो इसमें ये वाली जो प्रोसेस होती है वो वाली, ये सिमिलरली ये हमने एक एग्जांपल देखा है, बाकी सारे मेटल्स के साथ भी यही प्रोसेस होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज. तो मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी मच रिएक्टिव. द मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इसमें एग्जांपल क्या क्या है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स. उसमें जो क्लोराइड्स जो होते हैं, इनके क्लोराइड्स, इन तीनों मेटल्स के क्लोराइड्स को यूज करके इसके इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. ठीक है, अब इसमें रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व होती है हम वो देख लेते हैं. रिएक्शंस है हमारे पास, हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में NaCl, सोडियम क्लोराइड, हीट किया इसको तो हमें क्या मिला, Na और क्लोराइड अलग से, ये दोनों अलग अलग हो गए. ठीक है, तो metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrodes, whereas chloride is liberated at the anode, the positively charged electrodes, जो कि हमने इक्वेशन से हमें पता चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका निकला, इसको नेक्स्ट रिडक्शन करवाएंगे तो इसको हमने क्या मिला, सोडियम मिला
प्लस एट कैथोड पे, सोडियम हमने क्या मिला, इसे कैथोड पे। नेक्स्ट क्लोरीन, सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्लोरीन मिल गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज हुआ एट कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये दोनों ही हमारे क्लोरीन एटम्स हैं, तो हमें क्या मिल गई, क्लोरीन गैस मिल गई, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है, लो जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स यूज होते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज द मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, टिन, कॉपर, निकल आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मेटल्स क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड, या तो हमने पहले वाले टेबल में देखा था कि तो सल्फेट होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं। तो रिडक्शन से पहले इसमें प्रोसेस इनकी ऑक्साइड कराई जाती है ताकि इसको मेटल ऑक्साइड हमें मिल सके, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रोसेस होती है जैसे कि हमने टेबल में देखा था। सबसे पहले कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है और नेक्स्ट आती है रोस्टिंग प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग the ore strongly in the absence of air. The method is generally used for converting carbonate ore into oxide. ये जो मेथड है बेसिकली प्रोसेस होती है हीटिंग द ओर को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर की जरूरत नहीं होती है। और ये मेथड क्यों किया जाता है, यूज होता है फॉर कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर का ऑक्साइड हमें मिल सके, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ऑक्साइड मिलता है। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में लेंगे। देखिए कैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली जिंक में भी देख लेते हैं, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने क्या किया, हीट में किया, तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया और ये CO2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, कार्बोनेट को ही उसके मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली रोस्टिंग में भी हम यही होता है, दोनों के प्रोसेस सेम, काम यही है दोनों प्रोसेस का कि मेटल ऑक्साइड देना। तो रोस्टिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, उसमें एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंस होता है एयर का, ठीक है। किस तरह से देखते हैं, इसमें भी इक्वेशन है कि 2ZnS, ये जिंक ब्लेंड है, ये क्या है, जिंक ब्लेंड। तो दिस मेथड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग सल्फेट ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, जिंक ब्लेंड ले रहे हैं। जिंक ब्लेंड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड, क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड, जो कि हमें चाहिए था। तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, और ये हमारा क्या था, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या है, जिंक ब्लेंड पे ओर ही है जिंक का, जिससे हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। सो ये दोनों प्रोसेस हो गई मेटल ऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट जिंक, the metal oxide are then reduced to corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon. तो जिंक ऑक्साइड को हम हीट किया कार्बन के साथ, जो कि हमने बात करी हुई रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन काम करता है। इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। वो दोनों प्रोसेस होने के बाद इसका रिडक्शन किया जाता है और इस रिडक्शन प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड हमें मिला। जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, हमारा जिंक मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों प्रोसेस हमने देखी कि तीनों ही टर्म में लो, मिडल हो या फिर टॉप हो, तीनों ही प्रोसेस में मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरह से प्लेस होता है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।